So students, we are here in session of computer and we are doing our chapter number 3, which is about functions in Excel. And so far I have told you how you can use several kind of options available in Excel and as well as the functions such as sum, max, min, average, count, and etc. So, and I have told you also how you can sort your data according to ascending and descending order. Now it's time to understand how we can filter our data. So as I have told you in earlier classes that what do you mean by filter is filter means when you summarize your data or extracting the records over a certain type of condition, then it is known as the filtering data. That means जब भी हम कोई full certain condition देंगे उस condition के हिसाब से जो हमारे values आएंगे जो records आएंगे उसे हम क्या बोलते हैं filtering the data. As I have given you the example, just like that you uses the Amazon, Flipkart in which you do shopping, and once you are doing shopping, so you filter your things according to you, such as that key. Just a second, students. So in which we sort our data that key should be fit to our sizes, like I am checking for M size and price range should be in 400 to 800. So this is how we can filter our data. So filtering our data is of two types. First of all, auto filter. The auto filter is used to filter data on basis of specific value present in a column. So specific value अगर कोई present होगी तो उसके हिसाब से हम auto filter कर सकते हैं. Auto filter का मतलब क्या होता है कि जब भी हमने डेटा को फिल्टर किया है, जो डेटा हम देखना चाहते हैं, जो डेटा को हम एक्सेस करना चाहते हैं, केवल वही डेटा वो दिखाता है. तो अपने को क्या करना है, कोई भी एक सेल या फिर रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करना है. उसके बाद आपको क्या करना है, फिल्टर ऑप्शन पर जाना है. फिल्टर ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, डेटा टैब के अंदर मिलेगा. डेटा टैब के अंदर आप जाएंगे, जैसे आप फिल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यू विल फाइंड दैट फिल्टर ड्रॉप बटन देयर, and now you can see that there is a sign of arrow which will be available in your column headers, and if you will click on these column headers, so you can sort it out, you can filter it out according to you. And if you are unselecting or if you are unchecking any option, that means you are not going to access that data. So this is how you can access the auto filter. Now I'm going to tell you what is the custom filter. As the name is suggesting, custom filter works on our specific condition. Specific condition means we will going to assign a condition. On that condition it will run. Okay. The example states a specific condition marks in maths less than 91, but the steps mentioned are general without mentioning special values. That means we are going to see the values which is less than 91. Select the range of data as here it's been selected. Okay. Click on filter option in the sort and filter group on data tab. जैसे ही आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे रेंज को, फिर आपको फिल्टर डेटा ऑप्शन पे जाना है. फिल्टर ऑप्शन के बाद आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है. क्लिक ऑन फिल्टर ड्रॉप बटन नेक्स्ट टू द कॉलम ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द कंडीशन. जिस भी कॉलम में आपको चाहिए उस कॉलम के ऊपर आपने क्या क्लिक करेंगे, फिल्टर ऑप्शन को क्लिक करेंगे. फ्रॉम द ड्रॉप लिस्ट सेलेक्ट नंबर, टेक्स्ट फिल्टर्स एंड क्लिक custom filter option from the sub menu. The custom auto filter dialog box will appear. ठीक है, तो जैसे अपने उसको क्लिक करेंगे, जिस भी अपन ने जब इस एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर फिल्टर्स हैं और सॉल्ट है, सॉल्ट बाय कलर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्ट कर सकते हैं. Click on the condition drop button to choose required condition like equals, does not equals, is greater than, is less than, and etc. देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिखा रखा है कि नंबर फिल्टर पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कस्टम फिल्टर. कस्टम फिल्टर के बाद आपको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. इस साइड देखिए, यहाँ पर आपसे मांगेगा कि इज लेस देन आपको चेक करना है, इज ग्रेटर देन चेक करना है, यानी कि आपको वैल्यूज किस हिसाब से चेक करनी है. क्या आपको 91 से लेस वैल्यूज चेक करनी है, देन यू विल सेलेक्ट इज लेस देन. अगर आपको 91 से ग्रेटर देन वैल्यू सेलेक्ट करनी है, देन यू विल सेलेक्ट इज ग्रेटर देन. और अगर आपको केवल इक्वल्स टू वैल्यू ही चाहिए कि हाँ भाई 91 किसके आए हैं, देन यू विल सेलेक्ट इक्वल्स टू साइन. सो देयर आर सेवरल काइंड ऑफ ऑप्शन प्रेजेंट इन दिस कस्टम ऑटो फिल्टर. Now you will click on OK button to get the filtered record, or if you will click on OK, then you will see that the data is in sorted manner. Now we will understand how we can remove a filter. Okay, once you have applied filter and now you have done, now your all work has been done, and now you want to remove the filter. So how will you do is select any cell in the worksheet. You need to select
On the data tab, click on filter option in sort and filter group. The filter drop buttons will disappear from the worksheet and the hidden records will be displayed again in the worksheet. That means once you have done with your filtering, then you need to click on that filter icon again. Once you have click on that filter icon again, then the filtering the data will be disappeared now. Okay, so this is how you can use filter. I will go to show you how you can apply this in a practical manner also, but first we are going to consider theoretical portion. Next topic is conditional formatting. As the name is suggesting, once again, conditional meaning we are going to give conditions, that's it. Okay, so this feature of Excel is used to format the cell values to a specific format if they follow certain condition. कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या कहलाती है कि अगर अपन ने कोई एक फॉर्मेट दिया है और उसी फॉर्मेट और उसी कंडीशन के साथ जब हमारा एक्सेल वर्क करता है तो उनसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग. फॉर एग्जांपल, इफ द total marks scored by are above 450, they should appear in green color with bold effect. If marks are between 300 to 449, they should appear in yellow color with bold effect. And if less than 200, they should appear in red color. यानी कि मार्क्स के अकॉर्डिंग हम अपने सेल्स को, हम अपने रेंज ऑफ सेल्स को कलर करना चाह रहे हैं. तो ये क्या हो गया, कंडीशन भी दे दी हमने और एज वेल एज हम क्या कर रहे हैं, उसको फॉर्मेट भी कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. तो अपने को ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स टू व्हिच यू वांट टू अप्लाई द फॉर्मेट. यानी कि पहले उस रेंज को तो सेलेक्ट करो कि जिस रेंज पर आप कंडीशन देना चाहते हो और उसके हिसाब से आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं. फिर जब देखिए स्टूडेंट, जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे कंडीशन देना हो चाहे फॉर्मेटिंग करना हो, सबसे पहले हमें सेल की रेंज को सेलेक्ट करना होता है. ओके, सो नाउ क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन द स्टाइल्स ग्रुप ऑफ द होम टैब. होम टैब के अंदर ही आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाएगी. वहां पर आपको एक मेन्यू दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू एंड एक्सेट्रा. So step 3, you will find that highlights, greater than, less than and etc. Enter the values. For example, choose greater than and type 450. अपन ने क्या डिसाइड किया है कि 450 से ऊपर वालों को अपने अलग अलग कलर दिखाएंगे. तो ऊपर वाले यानी कि ग्रेटर देन वैल्यूज, सो वी विल क्लिक हियर ऑन ग्रेटर देन वैल्यूज एंड देन वी विल टाइप आवर कंडीशन. द कंडीशन इज नथिंग बट 450. Now click the drop down arrow and select the desired formatting such as green, fill with the dark green text. Here it is. So click on OK button to close the dialog box. To add the second condition, repeat the above step. So this is how you can do the conditional formatting also. Now we will understand adding a worksheet. Adding a worksheet, that means we are going to add one more sheet in our the whole worksheet. Okay, so a worksheet is a single spreadsheet. Okay, and you can add many worksheets in your workbook. To add new worksheet, click on insert worksheet button from the sheet tab. So sheet tab के बगल में ही आपको एकदम नीचे बॉटम में आपको दिखेगा कि इस insert worksheet बटन पर जैसे ही आप एक क्लिक करेंगे, उसके बाद एक न्यू शीट जो है वो ओपन हो जाएगी. और अगर इसको अपने को रीनेम करना है तो रीनेम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा. राइट क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, जैसे कि इंसर्ट करना है, कि डिलीट करना है, रीनेम करना है. सो वी आर कंसीडरिंग एज रीनेमिंग, सो वी विल सेलेक्ट ऑन रीनेम, देन इट विल आस्क अस टू रीनेम दिस and then if we are entering any name, so it will appear there. Okay, so this is how you can add a worksheet as well as a renaming also. And you can change the tab color also. How will you change the tab color? Worksheet with different tab colors helps to identify or organize worksheet. अगर हमारे पास जो tabs है ना, अगर वो टैब अलग अलग कलर के रहेंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं. कि ठीक है, मान लीजिए आपने एक माइंडसेट बना लिया कि रेड कलर का जो है वो मैथमेटिक्स के लिए रहेगा, ग्रीन कलर जो है वो मैं साइंस के लिए डिनोट करूंगा. तो अगर आप इसको डिनोशन के लिए यूज करते हैं, सो यू कैन चेंज द टैब कलर आल्सो. सो क्लिक द कलर यू वांट टू अप्लाई. जो भी कलर आपको करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक ऑन शीट टैब ऑफ द वर्कशीट whose tab color you want to change and choose the tab color. As you can see here, अगर आप राइट क्लिक करेंगे वहां पर आपको टैब कलर दिखेगा. टैब कलर के एरो पर अगर आप क्लिक करेंगे, so it will provide you different option to choose the colors from, and from desired color you can choose it. So students, this is how we have completed our chapter number 3, which was about functions in Excel. We have completed this chapter in
theoretical manner. Now I'm going to show you the practical implementation of it also. Okay, so the things will be clear more. So this is our MS Excel, and here you can find sheet 1, sheet 2, sheet 3. Okay. So and चलिए थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं. अगर अभी हमने क्या समझा था कि हम एक नई शीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर आप बॉटम में एक नीचे छोटा सा ऑप्शन आ रहा है ना, इंसर्ट वर्कशीट. तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा एक और नई शीट बन जाएगी. ठीक है, इस पे एक और क्लिक किया तो और शीट बन जाएगी. नाउ मुझे शीट 1 को नाम देना है क्लास 7. तो मैं इस पे क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा. राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करते ही मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, देखो रीनेम का ऑप्शन आ रहा है. रीनेम पे मैं जैसे क्लिक करूंगा देखिए ये डार्क हो चुका है. डार्क हो चुका है तो मैं इसको क्या करूंगा, क्लास 8 सॉरी क्लास 7 मैंने क्लिक किया, एंटर किया. तो देखिए अब इस शीट 1 का नाम जो किसमें चेंज हो चुका है, क्लास 7 में. सपोजिंगली मुझे शीट 2 का नाम करना है कंप्यूटर. तो मैं इस पे क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा. राइट क्लिक करने के बाद मैं रीनेम पे जाऊंगा और जैसे ही डार्क हुआ, डार्क होने के बाद मैं कंप्यूटर टाइप कर दूंगा. ओके, और फिर एंटर. अब मुझे इसको कलरिंग करनी है. तो कलरिंग करने के लिए वंस अगेन मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, टैब कलर के अंदर जाऊंगा. टैब कलर के अंदर सपोजिंगली मुझे रेड कलर चूज करना है, तो यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर दे दिया. और अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये जो क्लास 7 है इसके नीचे इसके बॉटम में रेड कलर शो कर रहा है. सपोजिंगली मुझे कंप्यूटर पे कुछ और कलर देना है. सो हियर आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ग्रीन, and now you can see the green color in the computer option also. So this is how we can color our sheet. Now I will show you how you can just fill the data. So supposingly I am going to fill data here. Let's say this is maths, English, science, and let's say computer. Okay. मैथ्स में 90 मार्क्स एंड इंग्लिश में 85, साइंस में 85, कंप्यूटर में 90. ओके, एंड लेट्स से और भी कुछ डेटा दे देते हैं. जस्ट अ सेकंड. चलिए मान लेते हैं ये फर्स्ट टर्म हाफ ईयरली के थे या, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि थर्ड टर्म के कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसके अंदर मैं 20 में से दे देता हूँ मार्क्स. 15, 18, 20, just here I have given 20 here and 18 here. Okay, so this is my data. Supposedly it is my dummy data, and now I want to filter it. Okay, so I am first selecting its range, and then I will go to the data tab. Data tab, here I can find this filter option. Okay, so I will click on this filter. Now you can see this arrow button. This arrow button means this has been applied to the filter. Now if I am clicking on it, so here are the option. Sort करना है आपको, Z to A करना है या A to Z करना है, कलर से कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो ऑल को. और अगर मुझे केवल इंग्लिश का ही वैल्यू देखनी है तो मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर और साइंस को अनटिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा. तो देखिए अभी मेरे पास केवल किसका डेटा है, इंग्लिश का डेटा है. ठीक है स्टूडेंट्स. और अगर देखिए वापस से मुझे फिल्टर हटाना है या फिर मुझे वापस सेलेक्ट ऑल करना है तो मैं ओके कर सकता हूँ. ठीक है, एक तो ये हो गया. अब मान लीजिए आपको क्या करना है कि कस्टम फिल्टर करना है. तो क्या था, ऑटो फिल्टर था. कस्टम फिल्टर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सॉर्ट बाय कलर या कस्टम सॉर्ट आप कर सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड. So now we will select the custom filter. Here I have clicked here in this. Now I will select the number filters, and now I can find at bottom right corner is that custom filter. Okay. Once I have clicked on this custom filter, I can see a small dialog box. Supposingly कि मुझे केवल 85 के इक्वल्स टू ही वैल्यूज देखनी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 85. ठीक है, 85 के इक्वल्स टू वैल्यू देखनी है, तो मैंने ओके किया. तो देखिए अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश और साइंस की वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि जो 90 की वैल्यू थी वो तो 85 से ज्यादा है और मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई कर रखा था, इक्वल्स टू. सपोजिंगली मुझे केवल 18 प्लस की वैल्यू देखनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नंबर फिल्टर पे गया, कस्टम फिल्टर पे गया और इक्वल्स टू की जगह मैंने क्या कर दिया, इज ग्रेटर देन मैंने लिखा 18.
18 से बड़ा कौन है, साइन 20, तो यहाँ पर देखिए इस कॉलम के लिए उसने मेरे को 20 शो कर दिया। अब मैं नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ कि आप लोग फिल्टर को ऑफ कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि फिल्टर ऑप्शन के ऊपर अभी हाईलाइटेड हो रखा है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिल्टर जो है इसका ये रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कस्टम फिल्टर एंड ऑटो फिल्टर एंड रिमूविंग द फिल्टर. So I hope that you have understood how you can implement the filtering in Excel, and this is how we have completed our chapter, and I hope that you have enjoyed this session. So please beta take care.